तो वरना सरकारी मुलाजिम होता है ना, फिर इसकी टेंशन नहीं होती। ये असल बात है, keeps moving. Politics is this, it's an everyday affair. One thing or the other keeps happening, you know. And some people take it very seriously. पढ़े लिखे हैं, मेरा बाप वाला बच्चा है, ब्यूरोक्रेट से, पुलिस से. I have a, my work is related to that. तो हर वक्त इनकी मदद चाहिए होती है किसी न किसी एरिया में. हमारे यहाँ मैं क्या तो अच्छा नहीं अब समझ is very good. अच्छा, she's a young chap. गुस्सा थी ना, मैंने उसको बहुत काम डाउन किया. मैंने उसकी मेरी स्वीट्स के पे, लेकिन मैं तो सच बताऊँ, आई बी ऑनेस्ट, उन्होंने सबकी ही वो कराई. आप लोग दूसरे डे में थे ना, हम लोग फर्स्ट डे में थे यार. और से चल के जब वो इतना बड़ा फोरम था, और फिर हमारे लोकल डिग्नेटरीज भी थे, हम भी थे, तो नेशनल इतना टाइम कंज्यूम किया बोल सम पीपल एवं. मैं तो कमर्शियल है तो बस आया है ऑनर कर. बाकी एजुकेशनिस्ट को या फिलांथ्रोपिस्ट को या जो NGOs आएंगी या उनको बोलने दें. यू नो व्हाट आई मीन, कि अफसर का भी तो रोल है ना. उसने सारा टाइम निकाल लिया, फिर वो सारा टाइम बैठा रहा. कोई ना लाओ जो भी वो सिंगल सा ये मसला था. अदरवाइज
join me in welcoming him. Assalamu alaikum, sir. Respected Chief Guest Mr. Nasir Jamal, Jamal Nasir, representatives from various organizations, esteemed government departments, DG Health, UN agencies, and members of civil society. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Komal Naeem, representing Save the Children, and it is my honor to welcome all our esteemed guests to the Stakeholder Gathering showcasing insights for strengthening sexual reproductive health and rights resilience in Punjab. Save the Children expresses gratitude to have the Honorable Dr. Jamal Nasir, Minister Primary Secondary Healthcare and Population Welfare as today's chief guest. To commence today's event, we'll play our national anthem. So I request all of you to stand up and we'll just have it played. Now I'd like to invite Mr. Hafizur Rahman, Controller FM 91, Radio Pakistan, Lahore, for the recitation of the few verses of the Holy Quran.
Sakala. Continuing with the event, I'd like to introduce Eni Razwan, the sign language interpreter for today's event, ensuring accessibility for all attendees from different organizations. Eni brings 8 years of experience contributing her expertise to esteemed organizations, forums dedicated disability advocacy. Her commitment to sign language stems from personal experience inspired by her family members with hearing impairment. Ladies and gentlemen, as you know, Save the Children is a global organization dedicated to investing in childhood and protecting children from harm. We are currently operating in 120 countries. We collaborate with various entities to implement humanitarian and development programs. Save the Children has been active in Pakistan since 1979, reached 14 million children and adults through health and nutrition programs. We will begin with remarks from Save the Children, UNFPA, and an honorable chief guest, Dr. Jamal Nasser. Furthermore, today's agenda includes presenting findings from consultations and inception meetings that have been conducted in the past month. Now I'd like to invite Mr. Mohammed Naeem, Director, Program Quality, Evidence and Impact, for welcome remarks. Honorable Minister of Health, Dr. Jamal Nasser Sahab, Director General, Department of Health, Dr. Ilyas Mohammed Sahib, Tania Durrani Sahib UNFPA से और हमारे NGOs के सिविल सोसाइटीज़ के UN एजेंसीज़ के और मीडिया के तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और इस इवेंट में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज बड़ा अहम दिन है हमारे लिए कि हमारी इस सेरेमनी को ऑनर कर रहे हैं मिनिस्टर साहब को भी, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। और फख्र महसूस कर रहे हैं कि पंजाब की लीडरशिप कितनी सीरियसली देख रही है जो ये टॉपिक है हमारा SRHR के इशू को, और तमाम लीडरशिप यहाँ मौजूद है आज इस शोकेसिंग इवेंट में। So thank you so much, sirs, for all of your time, dedication and presence today. कुछ ब्रीफली बताता चलूँगा सेव द चिल्ड्रन के बारे में। सेव द चिल्ड्रन पिछले 40 सालों से पाकिस्तान में काम कर रही है। जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाके हैं चारों सूबों में, इंक्लूडिंग AJK, NCG, गवर्नमेंट के साथ मिलकर, डेवलपमेंट पार्टनर के साथ मिलकर तमाम सेक्टर्स में हेल्थ, एजुकेशन, वॉश और बाकी जो डेवलपमेंट के सेक्टर्स हैं, चाहे ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर्स हैं, इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है और हम गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना उन तमाम एफर्ट्स का हिस्सा रहे हैं और अच्छी हैं, जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमत ने कोशिश कर रही हैं कि डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को एड्रेस कर सकें। हेल्थ सेक्टर की हवाले से हम बात करते हैं, सो वी आर प्राइमरीली फोकसिंग ऑन एक्सेस and availability of the health services across Pakistan to vulnerable communities हैं। Maternal and newborn reproductive health is one of the areas that we are focusing on. Child health, maternal, infant and young child nutrition is one of the key areas that we are delivering services in collaboration with the different health ministries at provincial level of Pakistan. Similarly, we are helping the government of Pakistan and development partners through different research studies and creating the body of knowledge as well. जिसमें recently हम launch करने जा रहे हैं हमारी CHD एक study है जो इस दिन में हमने की है, that we will be sharing with you all, which is like maternal nutrition के हवाले से एक बहुत बड़ा milestone है जो इस दिन में हमने achieve किया, and we will definitely be excited to replicate that here in Punjab as well. अगर सेव द चिल्ड्रन की बात करें तो सेव द चिल्ड्रन मुख्तलिफ डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ काम करती आ रही है, एंड वी हैव बीन पार्टनरिंग विद डिफरेंट डोनर्स इंक्लूडिंग UN एजेंसीज, UNFPA, UNHCR, UNICEF और दूसरे डोनर्स की अगर हम बात करें तो उनमें US डिपार्टमेंट
of State, ECO, European Union, Australian funders, Canadian government. So we have been trying our level best to pull in as much as resources जितना possible हो सकता है ताकि हम यहाँ के जो मसाइल हैं डेवलपमेंट के और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो है वो हल कर सकें। यहाँ बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सेव द चिल्ड्रन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंटरनेशनल एनजीओ है जिसने फ्लड रिस्पॉन्स 2022 में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया एंड वी हैव प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू the flood affected communities to the tune of $15 million in Pakistan, in Khyber Pakhtunkhwa and Sindh and Balochistan. So this is really pride for us that we are always there with our government in serving the poorest communities. जब हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं और उनके इंटरवेंशन की बात करते हैं तो हमारी जो इंटरवेंशन हैं सर those are actually mainly focusing on MNCH, disease surveillance response. हमारा एक मेन एरिया है हेल्थ में जिनको हम फोकस कर रहे हैं. Acute malnutrition is one of the key areas that we are addressing right now. We are working on through studies and others. Adolescents sexual and reproductive health is another area that we are focusing and we are providing services to the rural areas of Pakistan. आज के इवेंट के हवाले से ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, वक्त की कमी के बायस सर आप सब बहुत कीमती है. जस्ट क्विकली बताता चलूँ कि जब हमने कोई 10 महीने पहले ये शुरू किया इनिशिएटिव, सो वी आर रियली थैंकफुल टू डीजी साहब जिन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया, डायरेक्टर IRMNCH हमारे साथ रहे और इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेस्क्यू 112 और बाकी जितने भी की stakeholders थे, including a very diverse group of civil society organizations. They came together and we worked together and we started working on this resilience framework for Punjab in this. And that is something that I said in my previous event as well, like Punjab is again leading on this because it has not happened in other provinces. So again, Punjab is leading another big policy reform, a big strategic reform in the sector of health, which is really a pride for Punjab, and definitely with support from UNFPA, we will be looking forward to replicate the same model in other provinces as well. So I do see okay, let's have applause for Punjab for achieving this landmark. With this, I really thank the UNFPA for supporting and coming together with Save the Children to support in this very important initiative, and really very grateful to Brigadier Sahab जिन्होंने agree किया हमारे साथ इस काम को आगे ले जाने के लिए. We are very happy कि Brigadier साहब इनका experience, इनका काम जो है वो support कर रहा है तमाम कि जितना भी फ्रेमवर्क का प्रोसेस है, जो हमने इसके कॉस्टिंग प्लान पे काम करना है, जो रिफॉर्म ग्रुप बना है इस काम के लिए, उसको जिस तरह से वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. सो दिस इज रियली ग्रेट दैट वी आर हैविंग रियली वेरी रिच एंड रिसोर्स हियर जो कि इस तमाम प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं. सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल resilience framework plan as well as costing plan for that. We can take it for other provinces as an example as well. So I won't take much of the time, and thank you again, sir, for all your time and presence here, and really happy to see you all together here. Thank you so much. Thank you, Nesta. Ladies and gentlemen, UNFPA's mission is to deliver a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe, and every young person's potential is fulfilled. We have today with us Dr. Rashid, humanitarian analyst with UNFPA, who will share his insights with us. And I'd now like to invite Dr. Tanya to come and set up Dr. Rashid and then share her insights with us. Thank you. Sorry for confusion. Assalamu alaikum everyone, thank you. I'm not a doctor, but Tanya Durrani, I'm the
Punjab lead here for UNFPA. Thank you for having me. And Bismillahirrahmanirrahim. So, UNFPA would like to start by appreciating and commending all of you who gathered here today. First, I'd like to appreciate and welcome Minister Jamal Nasir Saab's participation and for taking the time today, along with DG Saab, Ilyas Mohammed Saab, and PD Saab from IRMNCH, as well as other departments, line departments, Population Welfare Department, Social Welfare, Women Development, PunjabDe, etc. Our INGO partners, our NGO partners, FPAP, and other experts, and of course, Save the Children. I would like to start by appreciating Save the Children, who have in a very short time given us really sort of impactful results. So thank you to you for that. So UNFPA's mandate is to ensure SRH and choices for all. And especially in Pakistan, we aim to accelerate progress towards achieving the transformative results, which are to prevent maternal death, to address unmet needs for family planning, and GBV and harmful practices, including child marriage. Given Pakistan's particular geographical circumstances, it is highly impacted by many changes in climate and making it one of the most vulnerable countries, which has experienced a wide range of disasters recently, especially in the last 20 years. Here in Punjab, where we have 50% of the overall population of Pakistan that resides here, we are more adversely affected by crisis, and especially in the flood-prone areas of southern Punjab. In any given crisis situation, UNFPA estimates that approximately 4% of the total affected population will be pregnant and will need life-saving maternal and reproductive health services. However, there is a high level of unmet need for family planning, and only about half, 50% of the total demand for modern family planning methods is even satisfied. So developing a resilience framework is a very timely endeavor, considering that the fact that Pakistan ranks fifth amongst the most adversely affected countries on the 2020 Global Long-Term Climate Risk Index. So resilience involves the ability of communities to withstand and adapt to recover from shocks and stresses. So by decreasing vulnerabilities and enhancing prevention capacity, communities are better equipped to build resilience, which contributes to the pursuit of the SDGs. So for UNFPA, building climate resilience and adaptive capacity has become more urgent and more difficult. Building knowledge, awareness, and capacity for the links between climate-related emergencies, health, especially SRH, maternal health, family planning, mental health and psychosocial support, gender-based violence, child marriage, and other harmful practices is critical and worsens with the incidence and rise in these situations. So as a first key step, UNFPA has taken the lead to bring all of us stakeholders together on the same platform. And so in addressing the enhancement of SRH resilience in Punjab, along with Save the Children and with the support of our ICs, we have proposed several strategic solutions. Firstly, integrating the resilience strategy into both health and disaster response frameworks is imperative. This would involve fostering a flexible health system that is adequately prepared to withstand and respond to unforeseen calamities. Essential to this approach is the pre-positioning of SRH commodities and procurements, and ensuring that they are a crucial component of disaster response planning. Additionally, prioritizing MISP, minimum initial services packages training, will also empower healthcare providers to effectively manage SRH challenges, especially as part of preparedness for disaster. UNFPA proposes, through the establishment of the Resilience Reference Group, and also through the development of a comprehensive costing implementation plan, and especially through advocacy and awareness raising, collectively to contribute to strengthening the SRH resilience by fostering collaboration, strategic planning, effective resource allocation, and systematic implementation here in Punjab.
I would like to highlight the pivotal role of the provincial government. My colleague before me mentioned this as well. Without your direction, spearheading these initiatives wouldn't be possible. And in Punjab is really a prime example where successes have been achieved. So again, through proactive engaging with programs, policies, and ensuring adequate resource allocation, preparedness efforts can be realized, especially for resilience and humanitarian programming. So I'll leave the details and the summary of a lot of what I just mentioned to my colleagues when they present in a short moment the resilience framework and the overall action plan for Punjab as they've put it together and as they've collected feedback from all of the stakeholders. So lastly, I'd just like to say that we look forward to continuing to support the government of Punjab and working closely with relevant departments who are all here today. And I'd like to appreciate once again, Minister Saab for making time today. And especially I'd like to appreciate Save the Children colleagues for taking on this task and all of your efforts in realizing today and the countless hours spent on consultations, bilateral, multilateral meetings with all relevant partners. So thank you so much for being here and we look forward to the rest of the program. Thank you. Thank you, Noreen. She is Punjab representative for UNFPA. Moving on, Save the Children and UNFPA hosted consultations, radio shows, and public service messages to strengthen SRHR resilience in the province. Before presenting the findings, a video showcasing our efforts and stakeholders' valuable inputs will be played. I request our team to please kindly play the video so you can all look at it. Thank you. Pakistan's most populous province, Punjab, faces many challenges, such as repercussions of climate change, persistent gender disparities, and restricted access to reproductive health services for women and girls, especially in emergencies. Reproductive health is often gravely overlooked in humanitarian relief efforts that prioritize food and emergency medicine. These challenges lead to exacerbated vulnerabilities for women, adolescents, and marginalized segments of a society and underscores the need for a holistic approach for strengthening resilience in SRHR in the province. Save the Children held a series of inception meetings and consultation under its program of strengthening resilience and reproductive health integration in Punjab, aligning with Pakistan's FP 2030 commitments and national objectives as outlined in the Council of Common Interest recommendations. जहाँ पर बहुत सारी चीजें अफेक्ट हो रही होती हैं, वहाँ पर हमें ये देखते हैं कि वहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस का रुझान जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है. 3-day consultative workshop was organized in Punjab by Save the Children in collaboration with UNFPA from November 29 to December 1st, 2023 to identify gaps, challenges, priority activities, and recommendations for strengthening resilience. 37 participants from key government departments such as Department of Health, Primary and Secondary Healthcare Department, Women Development Department, Social Welfare Department, Rescue 1122, Punjab Police, INGOs, NGOs, and UN agencies participated in the consultations. The outcomes of the consultations also included the formulation of a resilience reference group in Punjab with IRMNCH as chair and Save the Children in UNFPA as co-chairs of the working group. आज हम इस कंसल्टेटिव प्रोसेस में मौजूद हैं, जिससे हमें ये सीखने और समझने को मिला कि इस तरह की जो रेजिलिएंट सिस्टम की जो एक्टिविटीज स्पेसिफिक रिलेटेड टू द SRHR दैट नीड टू बी डन एट गवर्नमेंट लेवल और ये सोसाइटी के लेवल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो ख़वातीन और बच्चे हैं उसमें तो इतने वल्नरेबल हैं कि हम उनकी इन स्पेसिफिक नीड्स पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. इस तरह
तरह के जो वर्कशॉप्स हैं उससे माँ और बच्चे की सेहत पर जो हमें अवेयरनेस यहाँ पर दी जा रही है उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। माँ और बच्चे को लेके अगर ये कहा जाए कि सेहतमंद माँ और सेहतमंद खानदान, क्योंकि अगर माँ सेहतमंद होगी तो पूरा खानदान सेहतमंद होगा। The first meeting of the Resilience Reference Group was held on December 7, 2023, where TOR of the group were finalized and endorsed by the members. Is your iPhone storage full and battery health is significantly decreasing? Participants also reviewed priority activities for strengthening resilience in the province and set the foundation of a focused strategy and action plan. A series of radio shows and public service messages on priority thematic areas of maternal health, reproductive health in emergencies, inclusive health services, gender-based violence, and women and girl empowerment were aired on radio as pilot in the first phase. Experts were invited for a discussion to raise awareness among the masses on the respective thematic areas. पुलिस डिपार्टमेंट ने जो विक्टिम खवातीन हैं या जो विटनेस हैं, हमने उनसे लिए एक SOP इशू की हुई है। ऐसे अगर इस तरह का किसी के साथ क्राइम हो जाता है तो वो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही उस केस को इन्वेस्टिगेट करे। वही बात है कि हमारा मुआशरा जो है, बेशक हम पढ़ गए हैं, बेशक हम बहुत तरक्की कर गए, लेकिन अभी भी आदमियों में और ख़वातीन में फ़र्क रखा जाता है। बड़ा एक गहरा असर पड़ता है माँ और बच्चे की सेहत पर। खातून बाइख्तियार होगी, अगर माँ बाइख्तियार होगी तो इवेंचुअली जो है वो जो आपने कहा कि घर से ही एक चीज़ परवान चढ़ रही है, घर से ही पहला स्टेप हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं। The campaign reached around 15 million people in Punjab through airing of content from FM 101 stations based in Islamabad, Lahore, Faisalabad, Sialkot, Multan, Sargodha, Bhavalpur and Narwal. आज का इवेंट जो है जो ऑर्गेनाइज किया है सेक्रेटरी जनरल और यूएनएफपी के तरफ से ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है। इसके लिए हम भी मशहूर हैं कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और इसकी पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है, क्योंकि माँ और बच्चों की सेहत के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। जब भी इमरजेंसीज की सूरत हाल आती है, ये सिचुएशन पाकिस्तान में मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो मिनिमम इनिशियल सर्विस पैकेज की बेहद ज़रूरत है ताकि हम जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो है खात्मा कर सकें। Save the Children work with diverse partners to ensure women and girls affected by crisis have reproductive health options. We work towards enhancing national and sub-national capacities in resilience programming, emergency preparedness and response to ensure the availability of life-saving interventions during humanitarian situations. Save the Children and UNFPA are dedicated to fortifying resilience and reproductive health integration through strategic alliances and effective strategies to foster awareness and informed policy decisions. We envision a future where every girl and woman stands resilient. With you all during our presentation session, which will be followed by a question and answer session. Now, as you all know, that we have our honorable chief guest, Dr. Jamal Nasser, with us. Dr. Jamal Nasser is a highly respected social and political figure. His outstanding efforts and accomplishments as a social worker have earned him comparisons to renowned philanthropists such as Abdul Sattar Idi and Ansar Barni. Currently, Dr. Jamal Nasser serves as the Minister of Primary, Secondary Healthcare and Population Welfare Department.
Additionally, he holds the prestigious positions of being the president of two welfare societies, the Pakistan Green Task Force and the Qamar Jahan Foundation. He has been awarded Medal of Merit and Presidential Pride of Performance as well. Respected Dr. Jamal Nasir, I'd like to invite you on stage for your valuable remarks. Thank you. मेरे मोहतरम डायरेक्टर जनरल हेल्थ गोलर साहब गोलर साहब, मेरे मोहतरम PD IRMNCH, मैं इसको अक्सर पढ़ता हूँ सर असल कारण ये बड़ा मुश्किल से याद कर मुझे IRMNCH, डॉक्टर खलील साहब, फोकल पर्सन UNFPA मैडम तानिया दुरानी, परवेज नदीम साहब जिनकी वजह से मैं यहाँ आया, परवेज नदीम साहब भी एक अच्छा सा खिताब फरमा के गए हैं और ये मेरे लिए बड़ा ऑनर है। और मैं अभी अपने खलील साहब से और डॉक्टर रियाज गोदर से डिस्कस कर रहा था कि जो काम ऑलरेडी हमारी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ कर रही है और प्लस पॉपुलेशन कर रही है वो यही है, लेकिन क्योंकि हुकूमत के पास वसाइल ज़्यादा होते हैं और ख़ास तौर पे हमें आज कोई 11वां महीना ख़त्म होने वाला है, तो इस पर जो कुछ हमने इस हवाले से काम किया मैं आपको उसकी तफसील बताऊँ जो शायद आपके लिए बड़ी हैरानी भी होगी। और मुझे खुशी है कि सेव द चिल्ड्रन और ये हमारी UNFPA और हमारी IRMNCH मिलके जो और हेल्थ वाले काम कर रहे हैं, इस 11 महीने के अंदर डेफिनेटली हर चीज़ बड़ी बूस्टअप हुई है। मसलन सबसे पहले जो आपका काम था वो ये था कि ख़वातीन को, या प्लीज हेलो, सबसे पहला काम जो था वो हमारा पेरिफेरी से शुरू होता था और वो ये था कि ख़वातीन और बच्चे को जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है कि किस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए हमने क्या किया। सबसे पहला काम तो ये किया जो हमारी लेडी हेल्थ विजिटर थी LHP 43,000 के करीब, क्योंकि जब तक उनके आप सैलरीज की बेहतर नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा कोई शख्स। पैसे की बात है, मैं भी पैसे के लिए, आप भी पैसे के लिए, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तो पूरी शायद 2-4 दिन तो काम होता है। तो पहला काम हमने जो किया वो ये था कि 43,000 LHP को हमने ग्रेड 5 से ग्रेड 8 में कन्वर्ट कर दिया। ये पहला काम अल्लाह ने कराया। दूसरा काम जो हमने किया वो ये था कि लेडी हेल्थ सुपरवाइजर जो ग्रेड 8 में काम कर रही थी उनको हमने ग्रेड 12 दिलवाया और जो BA पास खातून थी उसको हमने ग्रेड 14 में ले गए। तीसरा काम हमारा ये हुआ कि ये जो हमारी लेडी हेल्थ सुपरवाइजर थी इनको पेट्रोल जो था वो पुराने रेटों पे मिल रहा था। फिर हमने WHO से मैंने ज़ाती तौर पर बात करके उनका डेली अलाउंस जो था पेट्रोल का उसको जो मौजूदा रेट है उससे कन्वर्ट कराया। चौथा काम हमने ये किया कि हमने एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जो 1034 थी और जिसको डॉक्टर खलील लुक आफ्टर कर रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ आवर डायरेक्टर जनरल हेल्थ। और उसका काम ये है कि जितना भी रात को डिलीवरी होगी 24 घंटे में ऐसी जगहों पे जहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, और हमने ये सर्विस बेसिक हेल्थ यूनिट के लेवल पे प्रोवाइड की है, बड़े शहरों में नहीं की। और इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि रात को जब खातून को पेन्स शुरू हो, लेबर पेन, तो आपको पता है गरीब आदमी ना तो कहीं से गाड़ी ला सकता ना गाड़ी अरेंज कर सकता, तो ये हमारी एक 1034 हेल्पलाइन है जिस पे वो फोन करेगा 24 घंटे विद इन हाफ एन आवर हमारी एम्बुलेंस जो है आधे घंटे के अंदर अंदर उसके घर तक पहुंचेगी, उस खातून को लेगी, उस खातून को लेके डिलीवरी करवाएगी। और इफ देयर आर एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी दैट शुड बी टेकन बाय आवर एम्बुलेंस टू दी हायर, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, वहाँ उसकी डिलीवरी करवा के हम उस पेशेंट को वापस उसके घर पहुँचाएंगे। ये बहुत बड़ा पंजाब हुकूमत का काम हुआ है ये वाला। और इसके बाद दूसरा काम हमने ये किया कि इस एम्बुलेंस सर्विस के जरिए वो तमाम बच्चे जो
मतलब जो एक्यूट एमरजेंसी होती है रात के टाइम, उनको भी हमने ये फैसिलिटी दी है कि उनको अस्पताल में ये बगैर पैसों के शिफ्ट होकर ये मॉनिटरिंग हो रही है। ये नहीं है, ये बिल्कुल जैसे आप दुबई जाएंगे ना, आप सऊदी अरब जाएंगे, दुनिया के किसी मुल्क में जाएंगे, हमारा किसी तरह का पूरा एक सिस्टम मॉनिटर कर रहा है। और एक एम्बुलेंस का हमें पता है, जो कि तकरीबन 650 के करीब एम्बुलेंस इस वक्त पंजाब में चल रही है इस सर्विस के लिए। एक एम्बुलेंस का निशान आ रहा है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन किस जगह पे है, पेशेंट ने अगर कॉल की है तो कितनी देर में पहुंचा, और अगर वो बंदा खाली खड़ा है तो कितनी देर से क्यों खड़ा है, मतलब ये सारा हम बिल्कुल एक दुबई मॉडल पे इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इवन फिर हमने ये सारा सिस्टम आउटसोर्स किया हुआ, ये भी नहीं कि हमने ये सिस्टम बनाया हुआ है हम इसको चलाएंगे, नहीं, हमने आउटसोर्स कर दिया, हमने ये ठेके पे दे दिया। उसका एक फायदा क्या हुआ, वो गाड़ी हर कोई गाड़ी खराब ही नहीं होती, क्योंकि उस बंदे को पता है अगर मेरी गाड़ी चलेगी तो पैसे मिलेंगे। अगला काम हमने क्या किया पेरिफेरी पे कि हमने जो न्यूट्रिशनिस्ट है उनको पाबंद किया, जो हमारी लेडी हेल्थ विजिटर्स थी, मिडवाइफ थी, इनको पाबंद किया कि जितने भी बच्चे वेल नरिश्ड आ रहे हैं हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर में, इवन तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में उनकी असेसमेंट हो रही है, उनको हम डाइट प्लान बना के दे रहे हैं, उनको हम सप्लीमेंट दे रहे हैं, इवन हम उनको दूध वहाँ बना के पिलाते हैं, हम कहते हैं आए हम दूध प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि एक अच्छा बच्चा पैदा होगा या एक अच्छा बच्चा होगा तो एक सेहतमंद कौम जन्म लेगी। फ्रॉम दैट कंसेप्ट हम ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने काम किया है कि हम फैमिली प्लानिंग भी उस लेवल पे ले गए, क्योंकि देखें बार बार जिक्र हो रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी जो है तकरीबन 25 करोड़ के करीब अप्रॉक्सीमेटली हो जाए। इस वक्त पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है दैट इज 2.6 से 2.8 भी हो सकता है। यार बेटा प्लीज याद करो, यानी काम बाहर चला करें ना, आप पूरा तकरीर कर रहा होता बीच में शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो पॉपुलेशन रेट जो था अगर यही चलता रहा तो 2050 तक एस्टिमेट है कि ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 45 करोड़ के करीब। तो उस पर भी हमने काम अभी से शुरू कर दिया है। और उसके लिए हमें WHO ने $100 मिलियन की एक सैंक्शन कर दिया, जिसमें $70 मिलियन हेल्थ को और $30 मिलियन जो है हमारी पॉपुलेशन को है। और लकीली ये पहली बार ही हुआ है कि मिनिस्टर हेल्थ भी मिनिस्टर पॉपुलेशन है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हम एक जॉइंट वेंचर के तौर पे काम कर रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट है वो पॉपुलेशन प्लानिंग के विंग बन चुके हैं और हम उनको पूरी तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं। वरना हमसे पहले जो पॉपुलेशन का महकमा था वो यतीम खाना अंजुमन फैजुल इस्लाम था, यानी ये मुहावरतन कहा जाता है कि बिल्कुल बेचारा यानी को पूछने वाला था। अगर आप हॉस्पिटल्स में जाते थे तो उनकी हालत ऐसी होती थी कि कोई शरीफ आदमी यानी कोई अच्छा आदमी उनको इतनी खराब सी जगह दी जाती थी। तो हमने उनको अपग्रेड करना शुरू किया। हमारे डीजी साहब इसको बड़ा काम कर रहे हैं उनकी डीजी के साथ मिलकर। इसके बाद हमने पेरिफेरी में ये किया कि इवन हमने एक और नया सिस्टम शुरू कर दिया है जो अनकरीब लॉन्च होने जा रहा है, हो भी चुका है, कि जो फैमिली प्लानिंग है क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ चीज़ें कमी थी। हमने उसको ये जो हमें फंड आ रहा है उससे उनको कंट्रासेप्टिव पूरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने एक और काम किया कि जो खवातीन अब कंट्रासेप्टिव के जिसमें मामलात में घबराती थी या दूर होती थी, तो हमने एक सिस्टम उनका शुरू किया है जिसमें हम उनको एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे और वो उनको टीए दिया जाएगा ताकि वो अपने वहाँ घर से आए और उनको खर्चा दिया जाएगा। और जो मर्द हजरात अपना खुद जो ऑपरेशन कराएंगे तो उसके लिए भी हमने उसकी एक अमाउंट का सजेशन किया कि उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये जानवरों का माशरा है, मर्दों का डोमिनेट माशरा है। मैं अक्सर टीवी के इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि कितना बदनसीब माशरा है कि जहाँ जब बच्चा पैदा नहीं होता तो सबसे पहले उस बच्ची को काबिल जुर्म समझा जाता है कि इस बच्ची में कोई मसला होगा। और मैं 1000 जगह मरतबा कहता हूँ, मीडिया पे कहता हूँ, जिस जगह मुझे मौका मिलता है कहता हूँ, यार खुदा का वास्ता, एक आदमी का जो टेस्ट है वो 1500 रुपए में हो जाता है, लेकिन एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि खातून जो है ना वो कभी जो है ना वो अनफिट हो सकती है, बंदा अनफिट नहीं हो सकता, और वो बेचारे पे लाखों रुपए लगा देते हैं। और इस सिस्टम को भी हमने तब्दील करने की कोशिश की है। तो ये तो मैंने आपको छोटी सी ब्रीफिंग बताई है कि हमने, हाँ इसी तरह फिर हमने कितने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है और हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं,
जहाँ वहाँ सोशल वेलबींग, वुमेन वेलबींग क्लिनिक बने हुए हैं, उनको हमने फैमिली प्लानिंग का हिस्सा बना दिया और वहाँ बाकायदा वो चेकिंग के दौरान उन्हें खानदानी मंसूबाबंदी या पॉपुलेशन के हवाले से उनको ब्रीफ करेंगे कि ये क्या चीज़ें होती है। फिर एक और काम हम करीब करने जा रहे हैं एक मीडिया पार्टनर के साथ कि अवेयरनेस पूरे मुल्क में फैला रहे हैं। इसके अलावा हमने जो पॉपुलेशन में किया है, क्योंकि देखें जब तक इस मुल्क की पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी आपके ये सारे मामला और मेरे मामला बेअसर ही रहेंगे, हम दीवारों से सर टकराते ही रहेंगे। क्योंकि जब तक लोगों को अवेयरनेस का शऊर पैदा नहीं होगा तो ये मामले नहीं होंगे। हमने उसमें क्या किया कि उलमा इकराम से रब्ता किया, और ये आज आपको बताऊं बिल्कुल गलत अप्रोच है। हमारे 75 साल में पॉपुलेशन को एक इग्नोर्ड महकमा समझा गया। उसकी वजह यह है कि कोई काम नहीं करना चाहता। जब हम काम नहीं करना चाहते तो कहते हैं यार हमारे उलमा इकराम जो है ना या रिलीजियस वो लोग इंटरफेयर करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यकीन कीजिए कि मैंने जितने बड़े बड़े उलमा इकराम से गुफ्तगू हुई, दे वर वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस पॉपुलेशन प्रोग्राम। इवन इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने एक कह दिया है कि मुतवाज़न खानदान जो है बहुत जरूरी है, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल की जो चीज होती है अगर वो कहते हैं कि नहीं है तो फिर कोई असेंबली भी कुछ नहीं कर सकती। फिर असल हमारे उलमा इकराम इतने पॉजिटिव हैं, हमारे सियासतदानों को सिर्फ इससे जरूरत है कि मेरी ना सीट कैसे पकड़ी हुई उसको वो मुल्क का नहीं सोचता, वो सूबे का नहीं सोचता, वो अपने शहर का नहीं सोचता, वो सोचता है तो अपनी सीट का सोचता है। और अपनी सीट का सोचता है तो फिर वो ये सोचता है कि मैंने इसको किस तरीके से वोट हासिल करने के लिए उसके लिए तमाम जायज और नाजायज हरबे इस्तेमाल करता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे आने से पहले ये सीटें बिका करती थी, चाहे वो पॉपुलेशन की सीटें थी चाहे महकमा सेहत की भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 11 महीने में कोशिश की कि मेरिट को फरोग दिया जाए। हमने एक काम किया, जब डॉक्टरों की सीटें बिका करती थी, आपकी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर की सीटें बिका करती थी, हमारे डीएचओ की सीटें बिका करती थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको कंट्रोल किया। क्योंकि इसी तरह से हम आजकल पॉपुलेशन में बहुत काम कर रहे हैं बच्चों पे। देखिए ना कितना बड़ा जुल्म है। सेव द चिल्ड्रन वालों को ये पहले गुफ्तगू शुरू करनी चाहिए थी डाटा देते हुए। सबसे पहले आप नाराज ना होइएगा, मैं आपकी थोड़ी सी टीचिंग करना चाहता हूँ। पहले आप डाटा दें कि स्कूल में हो क्या रहा है। 3.5 करोड़ बच्चा क्या स्कूल में नहीं जा रहा, आपको वहां से स्टार्ट देना चाहिए पहले। ये वो मुल्क है जिसके 3.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये है सेव द चिल्ड्रन। मतलब मैं आपको खुदा फंसा नहीं, आपका बड़ा नाम है, बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट यहीं से करें कि जिस मुल्क की तालीम में बच्चे 3.5 करोड़ घर बैठ जाएंगे उसका क्या होगा। आप ये मोटिव करें। हमें ये जरूरत नहीं है कि हम बच्चों को खुराकें खिलाएं, न्यूट्रिशन दें, हम अवेयरनेस डेवलप करके बहुत बड़ा कारनामा होगा। जिस मुल्क में जो एक घर के अंदर 9 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमें उन सेव द चिल्ड्रन के लिए काम करना है। आपकी सोसाइटी को कि यार ये खुदा के वास्ते 2-3 बच्चों पे महदूद हो जाओ। हमने एक और प्लानिंग शुरू की है कि जिसपे हम काम कर रहे हैं यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। ये इंश्योरेंस हर पाकिस्तानी के लिए होगी, एक खास अमाउंट थोड़ी सी लेके पूरे साल में, लेकिन हमने उसमें डिस्कशन में हमारी तकरीबन में फैसला कर लिया कि 2 बच्चों को तो 100% हुकूमत पाकिस्तान हेल्थ में मुकम्मल सहूलत फराहम करेगी। तीसरे बच्चे के टाइम 5,000 रुपए तक की करेंगे, चौथे टाइम कोई भी मतलब इसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमने पॉपुलेशन को रोकना है। पर पॉपुलेशन रुक जाएगी तो आपका बहुत सारा मसला हल हो जाएगा कि जो खुराक आपने 10 बंदों को खिलानी है, जब वो 4 बंदों को खिलाएंगे, जब आपने 10 बंदों को तालीम देनी है, जब 4 बंदों को देंगे। और एक और बात, मुझे अफसोस होता है कि आज तक किसी ने इस पॉइंट नहीं उठाया, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जब 4 निज़ाम तालीम चल रहे हैं। क्यों भाई? क्या मदरसे के बच्चे का क्या कसूर है? गरीब के बच्चे का क्या कसूर है? कल मैं पढ़ रहा था, हमारे एक चीफ मिनिस्टर और सिंध वाले गए हुए थे, गवर्नमेंट स्कूल में अंग्रेजी में सवाल कर रहे थे और बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे। कसूर किसका है? कसूर मेरा है, कसूर मेरी हुकूमतों का है। हमने देखे ना इस मुल्क में एक गुलाम क्लास पैदा कर दी है और एक आका गुलाम पैदा कर दी है। नाराज नहीं होना मेरी बात से। एक A लेवल सिस्टम चला दिया है और एक गवर्नमेंट का सिस्टम चला दिया है, और जमीन आसमान का फर्क है।
ہم نے پہلے اس ملک میں، ہم کون کہتا ہے آزاد ہوئے ہیں؟ نہیں آزاد ہوئے. اگر آزاد ہوتے تو اس ملک میں کوئی 75 سال سے خاندان حکومتیں نہ کر رہے ہوتے. اگر ہم آزاد ہوتے تو آج ہماری تعلیم مدرسے کے بچے کو بھی اور غریب کے بچے کو بھی وہی ملتی جو بڑے آدمی کے بچے کو مل رہی ہے. آپ جائیں دنیا کے کسی ملک میں، آپ کو 4 نظام تعلیم نہیں ملیں گے. او لیول، اے لیول، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، درس نظامی. مذاق ہے. آج تک ہم 75 سال میں اپنی تعلیم کی پالیسی نہیں بنا سکے. آج تک ہم 75 سال میں ہیلتھ کی پالیسی نہیں بنا سکے. تو بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام معیشی بدلو، وگرنہ ساغر و مینا بدل جانے سے کیا ہوگا. میں اکثر ہنستا ہوں. آپ نے میری بات پہ ناراض نہیں اور میں خوش ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، سیمینار کیا، لیکن بات اب سیمینار سے آگے نکل چکی ہے. آپ لوگوں کو شعور دیں، جو اچھے لیڈر کا انتخاب کریں تاکہ اپنی نسلوں کو بچائیں. پہلا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک اچھے اس پہ بلایا، کیونکہ یہ جو مستقبل ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے آپ کی اس آرگنائزیشن کے تھرو پنڈی میں، اسلام آباد میں، میرے خیال پنڈی میں نے 18 یا 20 بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہ امپروو کروائے ہیں اسے. اور جب یہ مسٹر ماہی پالا ہے، کیا نام ہے ان کا، وہ آئے، آپ دیکھیں نا، ہمیں غریب سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں. میں وہ منسٹر تھا جب میں وزٹ پہ گیا، مجھے انہوں نے انوائٹ کیا بیسک ہیلتھ یونٹ. میں کہا سر آپ دے کیا رہے ہیں ہمیں؟ گندی گندی چادریں. وہ ایمرجنسی باکس کر دیں، میں نے پکڑ لیا ان کو، بٹ WHO کا میں نے کو کچھ نہیں لینا. دیکھیں نا، خدا نے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود مجھے بتا تیری، میں قسم کھاتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں ہمیں پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کے فضل و کرم سے. کمی ہے تو کمٹمنٹ کی ہے، لیڈرشپ کی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں دے کیا رہے ہیں؟ یہ ڈبے دے رہے ہیں پرانے اٹھا کے کسی. خیر وہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے میری بات کو بڑے دل پہ لیا اور انہوں نے پورے کے پورے نئے ڈبے اور پتہ نہیں کیا کہا. اور تقریباً مجھے کہا کہ آپ بتائیں کتنے بیسک ہیلتھ یونٹ اور بنانے ہیں نئے، کیا ان کو کرنا ہے. انہوں نے میری بات کو بڑی عزت رکھی. دیکھیں آپ کو مانگنے کا طریقہ، اگر مانگنا بھی ہے اول تو مانگنے، آپ مانگنے میں جاتے کیوں ہیں؟ اللہ نے ہم اس لیول پہ لے آئے کہ ہم صرف، میرے والد صاحب کی ایک بڑی خوبصورت عادت تھی، جب میں بزنس کرتا تھا تو میں نے کہا، ابھی بھی کرتا ہوں، بزنس سے بات ہے میری لیبارٹری ہے. تو جب میں کرائسس میں ہوتا تھا تو میں ابا کو کہتا تھا میں گاڑی بیچنے لگا ہوں. تو میرے والد صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اپنے خرچے محدود کر. آج گاڑی بیچی ہے، کل موٹر سائیکل بیچو گے، کل سائیکل بیچو گے، سڑک پہ کھڑے رہو گے جا کے. اور میں ان کی بات پہ عمل کرتا تھا. 2 کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا. ایک بینک سے سود نہیں لیا. میں جب کرتا لینے سوچتا تھا. پچھلے دنوں مجھے بہت کرائسس میں میں گیا جب سے حکومت میں آیا ہوں، کیونکہ میں حرام سمجھتا ہوں یہاں پیسہ کھانا، غلط قسم کا. میں سور سمجھتا ہوں کہ اگر کھاؤں اگر میں یہاں کھاؤں. تو میں نے سوچا یار میں کر، پھر ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا یار آپ لے تو لیں گے، آپ یہ جس دن میں نے فیصلہ کیا میں نہیں لوں کرتا، میرا کام یوں ہو گیا. اللہ سے بھی دوستی کرنی چاہیے. اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے، آپ اپنی خواتین کو تعلیم دیں، کیونکہ کسی بندے نے صحیح کہا تھا، ایک پڑھی لکھی عورت دے تو پورا معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. اور خدا کا شکر ہے ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں، ایک معاشرے میں تبدیلی آئی ہے. کبھی ہم میڈیکل کالج میں جب پڑھتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ پہلے 2 بینچ یا 3 بینچ پہ لڑکیاں بیٹھی ہوتی تھی اور سارے لڑکے ہوتے تھے، اور بیچاری بڑی سہمی سی بیٹھی ہوتی تھی، کیونکہ 250 کی کلاس میں جب 30 اور 40 لڑکی ہوتی تھی تو آپ سوچیں لڑکی بیچاری کس طرح بیٹھی ہوگی پریشانی میں. اور اب جب ہم میڈیکل کالج میں جاتے ہیں تو 3 بینچوں میں لڑکے سہمے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور لڑکیاں پوری کی پوری کلاس میں لڑکیاں بیٹھی ہیں. دس از دی ریولیوشن آف دا ایجوکیشن ان پاکستان اباؤٹ دا فیمیل. مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اور بچے بڑی محنت سے پڑھتے ہیں. میرا بیٹا تھا ڈاکٹر بنانے کے لیے، مجھے اس کے بعد کبھی تھپڑ بھی لگانے پڑے، لیکن میری بیٹیوں کو مجھے روکا کرتا تھا کہ خدا کے واسطے بیٹی بس کرو بھائی بس کرو. تو یہ ہمارا جو ہے نا، ہماری بیٹیاں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. ہم نے بچیوں کو عزت ہی نہیں دی. اب بڑا اچھا سوال ہے ٹی وی پہ چل رہا ہے، کسی پارٹی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جب 50% پاپولیشن ہے خواتین کی، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنوں میں کام کر رہی ہیں، دنیا میں ترقی کر رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو کیوں
क्यों नहीं उनको टिकट दे रही, क्यों नहीं ला रही? इसलिए वो डरती हैं क्योंकि खवातीन बुनियादी तौर पे करप्ट नहीं होती, खवातीन बुनियादी तौर पे डरपोक भी नहीं होती। आप देखें, एक माँ के सामने पहाड़ को खड़ा कर दे, शेर को खड़ा कर दे, उसके बच्चे को हाथ तो लगा दे। दुनिया में हमारी खवातीन सबसे ताकतवर खवातीन है, इसलिए वो बच्चियाँ पढ़ती भी हैं, नौकरी भी करती हैं, घर में नाराज होना, मैं जानवरों का मास्टर कहता हूँ, कदर नहीं है बच्चियों की। वो ये नहीं सोचते बच्ची 5 लाख रुपए लाके कमा के दे रही है हमारे पूरे घर को, जाने शाम को उसे फिर कहते हैं कि किचन में जाके खाना तो देख लो कैसा पका है। उसने बेचारी ने अपने बच्चों की तालीम भी देखनी है। तो ये सिस्टम बदलने हैं हमने बच्चियों को ज्यादा इन्वॉल्व करना। जिस दिन माशरे में हम अपनी लड़कियों को, बच्चियों को इस जगहों पे ले आएंगे तो यकीन कीजिए ना हमें कर्जों की जरूरत पड़ेगी, ना फिर सेव द चिल्ड्रन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और हम एक कौम के तौर पे दुनिया में उभरेंगे। बहरहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी बातें ज़रा मुख्तलिफ होती हैं। मैं आपको सिर्फ मुख्तसर सी एक बात बताऊँ, मेरी माँ शहजादी थी, इंडिया में यहाँ आई तो लंडे के कपड़े पहनाए हमें, क्योंकि सब कुछ टूट के आ गया। लेकिन मेरी माँ की विजन देखें, उसने अपने बच्चों को तालीम दी, और ऐसी तालीम दी कि आज हम माशरे में माशाअल्लाह इज्जत तरीन लोग हैं। और दौलत जो है ना बड़ी बेवफा चीज़ है। एक नस्ल कमाती है, दूसरी नस्ल से उड़ा देती है, क्योंकि उसको नहीं पता। मेरे बाप ने शहर में रेहड़ी लगाई, मैंने बड़ी मेहनत से कमाया। मेरा बाप अगर 50 रुपये खर्च करता था, मैं 5 रुपये का, मेरे बेटे को एहसास ही नहीं है। सच्ची बात है कि मैं किस तरह कमा के आऊँगा। तो ये दौलत के साथ सौदे मत करें, तालीम के साथ करें। बहरहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी कोई मेरी लेकिन मेरी आदत है कि मैं सच बात करता चला जाता हूँ, क्योंकि शायद अब ये मेरी इस जगह पे शायद आखिरी तकरीर हो, क्योंकि अब हमारी हुकूमत चली जाएगी। लेकिन मैं आपको एक मैसेज दूंगा कि जब भी वोट दें किसी अच्छे आदमी को दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद। Sir, for sharing your thoughts with us today. Now, I'd like to invite our director, PQEI, to come to the stage and present the shield to our respected chief guest here. And then, if you could, sir, please come on the stage again. We have to give, acha, he'll take it on your behalf, sir. For us, sir. भाईजान भाई बस ठीक है। I'd like to request everyone to come on the front so that we can take a group photo with our chief guests and other
साइड पे हो जा, थोड़ा साइड पे हो जा, पे से। हेलो भाई, लाइव चल रही है। थोड़ा सा पीछे हो गया, आप पीछे आ जाओ, वापस राधिका। Thank you everyone. Now we'd like to move on to our next agenda point for today. And I request Dr. Nadeem Mahmood, who will present the findings of the consultations that we've been having in the past month. Please, Dr. Nadeem, I'd like to request you to please. सर मैं अपनी फाइंडिंग तो बाद में शेयर करूँगा। अभी जब आप तकरीर कर रहे थे तो मुझे इलामे ब्लाक का एक शेर याद आ गया कि दिल से जो निकलती है वो असर रखती है, वो परवाज नहीं मगर इसके साथ मुझे फराज का शेर याद आ गया कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो आपका निगरान सेटअप बेशक थोड़े अच्छे हैं मगर मैटर ये करता है कि हमारी कम्युनिटीज के लिए कौन कितना अपना हिस्सा डाले, और ये विजन है जिसके लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और खास तौर पे इस वजह से कि मैं पर्सनली जानता हूँ कि आप रात को आधी रात के बाद पहुंचे हैं और वो भी जीटी रोड के रास्ते में रोक अगर हो तो कम से कम आप लोग बनाए। दिस शोज योर कमिटमेंट। हम जो रेजिलियंस की बात करते हैं ना सर, आपने बड़ी अच्छी बातें की, एजुकेशन के बगैर कुछ हो नहीं सकता। और आपने ये भी बड़ी अच्छी बात की कि जब तक हमारी माएँ उनकी हम तरबियत नहीं करते, उनको हम तालीम याफ्ता नहीं करते, हमारा माशरा तरक्की नहीं करता। बेसिकली सेव द चिल्ड्रन जिनके साथ में भी कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और UNFPA, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं कि हमको इनकलाब बर्पा कर देंगे, ना हम ये चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट कर रही है सर, हम उसके साथी बने। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अगर कुछ हमारी वजह से बेहतरी हो सके तो कम से कम ये ना हो कि हम अपनी गलत की मस्जिद बना लें। इसीलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दिस कंसल्टेंसी आई हैपन टू विजिट मैनी ऑफ डिपार्टमेंट्स, और मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि तमाम डिपार्टमेंट दे वर वेरी ओपन, दे वर वेरी रिसेप्टिव। वरना तो आजकल जिसका मसरूफियत है, हमारे DG हेल्थ बैठे में जब मैं इनके पास गया उनका बिल्कुल IRMNCH को हमने कहा कि इसकी आप लीगल रेजिलियंस ग्रुप की, इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है रेजिलियंस पे बहुत काम हो रहा है। मगर सर मैं जो शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर साल आपको तो मेरे से ज्यादा पता है 97,20,000 औरतें दे गेट प्रेग्नेंट। इनमें से सर 30,90,000 वो हैं जो कि अनइंटेंडेड है। ये देखें कितना बड़ा परसेंटेज है सर। और इनमें से 22 लाख औरतें सर दे रिजॉर्ट टू अबॉर्शन एंड दे गो टू अनसेफ प्लेसेस।
और इनमें से सारा हैरान होंगे कि 7.25 लाख औरतें हर साल किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन में मुबतला होती हैं ड्यू टू गोइंग टू दिस अनसेफ प्लेसेस। तो आप जो काम कर रहे हैं, आपने जो एम्बुलेंस शुरू की, आपने जो बीएसपी को स्ट्रेंथन किया, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड वी ऑल अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड वी वांट टू बी पार्ट विद यू। हम कोई इरादा नहीं करना चाहते। रेजिलियंस का ख्याल आया क्यों? सर रेजिलियंस का ख्याल आया क्यों सर? बाय रेजिलियंस सर इसलिए कि मैं इस सेक्टर में भी ऑलमोस्ट अब जब से मैंने फौज से अब इस कलर सर्विस पूरी की, मैं से मुंसलिक हूँ और फौज के दरमियान में आई हैपेंड टू गो टू बॉस्निया और बॉस्निया में उस वक्त गया था जब SRHR हुआ। और अगर आपको अंदाजा हो और आपको पता हो, आपसे ज्यादा कौन इसको जानता है कि उन्होंने किसी जवान बंदे को नहीं छोड़ा था, औरतों को उन्होंने रेप करके छोड़ दिया। एंड व्हेन दे केम टू अवर कैंप, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी कैंप को अलाउ किया था उन्होंने उस जमाने में, द women they were shocked, they could not speak sir। तो किसी भी डिजास्टर में उस वक्त से मेरे जहन में ये है कि हम जब भी कोई डिजास्टर आता है हम चले जाते हैं शेल्टर पे, हम चले जाते हैं फूड पे। हम अक्सर भूल जाते हैं कि किसी भी डिजास्टर में 75% वो जो इफेक्ट होते हैं दे आर वुमेन एंड गर्ल्स एंड जीबीवी, जेंडर बेस्ड वायलेंस। सर आपको अंदाजा होगा 2005 में क्या हुआ हमारे साथ? बहुत सी जगहों पे माँ बाप फैमिली खत्म हो गई, वो बच्चियों को अगवा कर लिया गया। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस सर कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त जितने ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, जितने ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स हैं, 5 में से 1 औरत शी इज सब्जेक्टेड टू जेंडर बेस्ड वायलेंस। दिस इज इंपॉर्टेंस। अब हम चाहते हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिटीज हैं सर, वो इतनी उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो जाए कि छोटा मोटा जो इस तरह का अगर इंसिडेंस होता है, दे शुड बी knitted together। हमारे मुख्य जो महकमे काम कर रहे हैं वो तमाम मिलके अगर कम्युनिटी बेस पे हम उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर लें। और मैं एग्जांपल देता हूं सर, हमने कम्युनिटी रेजिलियंस रेफरेंस ग्रुप डेवलप किए, मुजफ्फरगढ़ में किए सर, हमने नौशहरा में किए। और कम्युनिटी ने किया क्या? उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट ग्रुप बना लिया, जितने लोग उधर हैं उनकी लिस्ट बना ली, उन्होंने ब्लड डोनर्स का ग्रुप बना लिया, उसके बाद कवर्ड आ गया सर। अब जब कवर्ड आ गया, रिस्ट्रिक्शन लग गई। और आपको पता है कि SRHR सर्विसेज को जो है उस वक्त दे वर नॉट कंसीडर्ड एज एसेंशियल सर्विसेज। अनफॉर्चुनेटली अगर कोई औरत बेचारी प्रेग्नेंट है, उसको गाड़ी नहीं मिल रही जाने के लिए, व्हाट शी विल डू? तो वो जो सर हमने रेजिलियंस कम्युनिटीज में डेवलप की थी, दे रिस्पोंडेड इन अ बेटर मैनर, क्योंकि उनके पास वो ट्रांसपोर्ट का एक बना हुआ था। उन्होंने कहा अच्छा यहाँ से मदद ले लें। तो ये छोटी छोटी इंटरवेंशन जो हम कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे, अगर हम तमाम ये मिलके इसको करेंगे तो मेरा ख्याल है वो कम्युनिटी विल इंप्रूव एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो क्योंकि सर आप बिजी हैं, मैं सिर्फ आपसे शुक्रिया अदा करना चाहता था और आपके तवज्जुह से आपकी पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पॉपुलेशन वेलफेयर, क्योंकि मेरा ख्याल ऐसा मौका कम ही होगा कि फिर कभी को मिनिस्टर दोनों को एक ही मिलेगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो जाते जाते मेरी आपसे दरख्वास्त जो है सर, वो ये है कि जो मैं अनअटेंडेड प्रेगनेंसी आपने शेयर की, इतनी बड़ी एक तादाद, उसके रिजल्ट क्या है? वी मस्ट सी इट। हम बहुत अरसे से डॉक्टर साहब बैठे हैं सर, पॉपुलेशन वेलफेयर के डॉक्टर डीजी साहब बैठे हैं, कमोडिटीज, सिक्योरिटी ऑफ द कमोडिटीज सर पाकिस्तान में कोई नहीं प्रोड्यूस की जा रही, हम सब रिपोर्ट करते हैं। हमारे इकोनॉमिकल हालात की वजह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। वो इम्प्लांट सर, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट जो 900 का रहते थे, अब 3000 का अवेलेबल नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, ये दरख्वास्त है सर कि ये वो चीजें हैं, अगर पॉपुलेशन हैज बिकम अ पब्लिक हेल्थ इशू, हम अक्सर इसे आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि फौरी रिजल्ट्स नहीं आते। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म तरक्की चाहते हैं, इस मुल्क में अगर हम बेहतरी चाहते हैं, दिस इज वन इशू, इसको अगर हम फोकस कर लें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क हमारे जो वसाइल हैं उनके मुताबिक अपने हालात बेहतर कर सकते हैं। तो मेरी सर जो बाकी फंडिंग अगर आपके पास टाइम हो तो मैं वो शेयर कर लेता हूँ। तो मैं बाकी सर जो मेरे दोस्त, मैं बाकी जो दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा वो सब थोड़ा सा हमारा साथ देंगे। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू सर। और मुझे उम्मीद है कि IRMNCH के साथ मिलकर इंशाल्लाह we will proceed sir and we will bring some results with this.
इसीलिए रहे हैं प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि कंट्रासेप्टिव और ये सारी चीज़ें और ये सारा इस पर काम हो रहा है और ये इंशाल्लाह ताला जो हम पैसे ला रहे हैं इससे सारा कुछ इसी पे किया जाएगा। और हमने ये जो इसको हेल्थ और पॉपुलेशन को इंटीग्रेट किया हुआ है इसकी वजह यही है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं हेल्थ में जो पॉपुलेशन के पास नहीं, जो पॉपुलेशन के पास हैं वो हेल्थ के पास हैं। आ जाए अभी तो वो जो चीज़ें आप ज़रा इनको एक आप भी जो खिताब फरमाएं ना थोड़ा सा ज़्यादा जाते कि बताएं कि पॉपुलेशन तो बहुत अब काम कर रहा है इस वक्त है जी। बल्कि हमारी चीफ मिनिस्टर से पहली बार एक मीटिंग हुई है, हम उसके कुछ और भी चीज़ें काम हम बहुत सारी इंशाल्लाह ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं इस पर। थैंक यू वेरी मच। And I request all of you to please kindly be seated so that we can continue. Moving on, as we know that several studies show that including the needs and voices of persons with disabilities, especially during planning and preparedness, can significantly reduce their vulnerability and increase the effectiveness of government response and recovery efforts. Participation of persons with disabilities is key to ensure that their needs and rights are respected and met at all stages of response and recovery efforts. We have today with us Mr. Naril Abbas, President, Dream Team and CEO of Wheelchair Wala, with us. He is disability rights activist and corporate consultant with a remarkable track record in advocating for inclusivity and diversity within the workplace, particularly focusing on persons with disabilities. He is the first graduate of his family and became the youngest representative at the Asia Pacific Disability Forum representing Pakistan. He's been working with government and different multiple organizations, international NGOs, focused on persons with disabilities, strategic framework and policy, including legislation and disability lawmaking. I request Mr. Naril Abbas to please come on stage and share his thoughts with us.
My name is Noria Abbas. I am the president for Team Dreams, the Art of Living. This is a civil society organization working for people with disabilities. And we have this wheelchair wala group that provides the consultancy and paid services for people with disabilities. We've been working in this field of disability by childhood. Most of our people with disabilities are having disability by birth, accidental disabilities, and so on. As per WHO, 15% population having different disabilities, and Save the Children organization and UNFPA. So inviting us and including people with disability as the strategic partner for the resilience group. If we talk about the numbers, number is very huge, and when you talk about people with disabilities during health emergencies, that one we learned when I was traveling to USA. So I was a part of this wonderful group of different leadership from Pakistan, and we went to different healthcare departments. We went to first respondents. We went to different institutions, including CDC, Center for Disease Control, which is the head office for the rest of the world. We went to WHO. We went to USA, and so on. And where we learn a lot of things. And what we really need to understand is, including people with disabilities, in particular during disaster, is one of the very fundamental things that we need to take care of. थोड़ी सी मैं उर्दू में भी बात करता हूँ ताकि आपका तवज्जो का मैं मरकज बन जाऊँ। तो जब आप जैसे हमने पिछले साल सैलाब में काम किया, when we went to flood, तो लोगों ने हमसे पूछा कि व्हीलचेयर से क्या फर्क पड़ेगा सैलाब में? लोगों को पानी की जरूरत है, हथियार की जरूरत है, तो व्हीलचेयर क्या करेगी? तो व्हीलचेयर ये करेगी कि अगर वो शख्स, वो बच्चा है, ये बुजुर्ग है, ये बड़ा है, तो जमीन पे बैठे शायद 1 घंटे के अंदर डूब जाए, लेकिन जब वो व्हीलचेयर के ऊपर होगा, कम से कम उसे हम 2 फीट की जिंदगी एडिशनल प्रोवाइड कर देंगे। वन द अदर थिंग इज, किसी को कंधे पे उठा के लेके जाना इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, लेकिन अगर आपके पास व्हीलचेयर हो, पहिया हो, तो आप उसको ड्रैग कर सकते हैं, आप उसको पुश कर सकते हैं, विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगेन आप इमेजिन करें, अगर आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है और कोई अनाउंसमेंट हो रही है इमरजेंसीज की इन योर एरिया, किसी गांव में कहीं पे कोई मैन मेड डिजास्टर है या नेशनल डिजास्टर है, तो एक हियरिंग इम्पेयर्ड वो अनाउंसमेंट नहीं सुन पा रहा, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट लेवल पे क्या कर रहे हैं, INGOs, NGOs ऑल टुगेदर, इट्स अ शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। इसी तरह फीमेल विद डिसेबिलिटीज हैं, जैसे कि अभी सर ने जिक्र किया ना कि पाकिस्तान में लड़की पैदा करना एक जुर्म है, तो लड़की और विद डिसेबिलिटी वुड बी कंसीडर्ड एज गुनाह कबीरा, if I take the word forward, carrying on his own word that he shared. So it is very much important for all of us, all the stakeholders, to take people with disabilities on board, the people who are professionally engaged and learn from international standards, and they can serve the community as equal as any other person. So it is also need to be considered that we have to create some community champions in different local and district level. So for me, if I am traveling to, let's say, Balochistan, if I am traveling to KPK, so my appearance, my language barrier will not be convenient to the local people. So my finding while working in different communities, we have to engage many people from the community, make them understand, make them able whenever there is unforeseen situation, disaster, so these people can respond, and these local people would be more effective rather we travel all the way from other cities. And one last and very important thing is people with visual impairment. Again, what are importance? We have these toolkits, we have these to-do list. हमने वो क्या लिस्ट डाउन किया है अपने उस वर्किंग ग्रुप के साथ कि अगर विजुअल इम्पेयरमेंट होगा तो क्या किया जाएगा। अब जब सैलाब आता है, ज़लज़ला आता है, कोई IDPs होती हैं, तो व्हाट अबाउट पीपल विद डिसेबिलिटीज जो कि मेडिसिन पे हैं, जो वेंटिलेटर्स पे हैं या आर्टिफिशियल लंग्स, उनको अगर आपने मूव कर दिया उनकी बैटरी, दे विल नॉट लिव एनीमोर। बट अनफॉर्चुनेटली in many forums it has never been discussed. So I am very happy that UNFPA, Save the Children
Punjab is taking such initiative, and I look forward. I am a person, and all of my team are very positive for this first step towards the inclusion for people with disabilities. And there is a will, there is a way, and we always see UNFPA there. Now Save the Children is with us. So I'm very happy and very energized. And of course, we have social welfare department here who are the custodians to us. So last but not the least, as we do the polio campaign, this is my suggestion to all the stakeholders sitting here. जैसे हम पोलियो की कैंपेन करते हैं और घर घर जाते हैं, I really want someday if we can do people with disability population calculation on the person with disability की भी महीने में 6 महीने के बाद एक कैंपेन हो कि उनको काउंट किया जाए, वो काउंट आएंगे, वो नंबर आएंगे, then we have the coverage. And thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. Nair, for sharing your thoughts with us today. As you, all of you know, that today's event is with reference to the consultation sessions Save the Children and UNFPA conducted during the past month. I'd now like to invite Dr. Nadeem to the stage so that he can present the findings of those consultations and share his thoughts with all of you. Thank you. And that is strengthening reproductive health in India. Let me share with you that Punjab is taking the lead in this by establishing this resilience reference group at the provincial level. And in this short period, I have visited almost all the departments in the provincial government, the NGOs, INGOs, CSOs, and UN agencies. And all of them, they are on board with us and they are part with what I am going to present you here. You all know that Pakistan is one of the most disaster-prone countries in the world. We are among top 10 countries who are being affected due to this climate change. And we are at the bottom of those 10 countries who are contributing to this climate effect. So, if you see that the frequency of the disasters, it is increasing with the passage of time. And Pakistan is adversely affected with not only the natural disasters, but unfortunately our geopolitical situation of where we are located is such that we are also involved in many other complex disasters which is affecting large population of Pakistan. 117 million people in Pakistan, they are living below US $1.90, which is the poverty line. अगर आप पाकिस्तान की टोटल आबादी देखें तो इट इज 241.9 मिलियन. तो इसमें आप देखें कि 117 मिलियन. तो वो जो कहते हैं ना, गालिब ने कहा था कि तंगदस्ती घर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नहीं करता. तो ये जो तंगदस्ती है, इकोनॉमिकल वायबिलिटी ना हो, तो आप रेजिलियंस कहाँ से डेवलप कर सकते हैं जिसको सिर्फ अपने खाने के लिए प्रॉब्लम. बहुत बड़ा हमारा जो एलमिया है वो ये है. और इनमें से 36.9% of the population is classified as food insecurity. और अगर आप अपनी पॉपुलेशन देखें, आपको याद है 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 1970 में we were at 10th place and now we are at 5th place. और अगर इसी ग्रोथ रेट से हम रहे तो by 2050 we are going to be 4th largest population country in the world. अपने रिसोर्सेज के विज़ा भी अगर हम कंपेयर करें तो हमें जो भी प्लानिंग है वो कम पड़ता है.
कि पॉपुलेशन डायनामिक्स अगर आप देखें, ये मैंने कंपेयर किया है बिटवीन द लास्ट सेंसस और अभी जो डिजिटल सेंसस हुआ है उसमें पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज 2007.68 मिलियन जो लास्ट सेंसस हुआ, और जो अभी डिजिटल सेंसस जो की रिपोर्ट आई है दैट इज 241.5. सेम इज इन पंजाब. 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान दे reside in पंजाब. और अगर आप डेंसिटी वाइज देखें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर है पाकिस्तान की दैट इज 312 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, मगर अगर आप पंजाब की कंपेयर करें तो इट इज 622. So these are the comparison of the population. ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था इम्पोर्टेंस ऑफ SRH सर्विसेज. ये जो एक स्टडी हुई है ये UNFPA ने की थी ड्यूरिंग कोविड-19, और उसमें आपको अगर पता हो SRH सर्विसेज को एसेंशियल सर्विसेज में शामिल नहीं किया गया क्योंकि हमारे जो हेल्थ जितने सेटअप थे वो बड़े. उस सिनेरियो में जब एनालिसिस किया गया तो वो देखा कि 10% अगर डिक्लाइन हो सर्विस कवरेज में तो जो मैटरनल केयर है इट may result in 1,03,563 additional births, and without access to health facilities leading to 1,086 additional maternal deaths. आपको पता है कि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे जो शंघाई फ्रेमवर्क है, हम तमाम जितने भी ग्लोबल हमारे कमिटमेंट्स हैं हमने तमाम में कमिट किया हुआ है कि हम अपने हेल्थ इंडिकेटर्स इंप्रूव करेंगे. Even though the MMR of Pakistan का है, with all the efforts, it is around 158, and we have committed it globally, and we are going to reduce it to 70 by 2030. So we have to work together to achieve all those commitments which we have done with at the global level. अब मैंने सुबह भी ये जिक्र किया कि इमरजेंसी में ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स हैं दे इंक्रीजेस. आप ये नहीं कह सकते कि जब डिजास्टर आ गया तो वो जो औरतें दो प्रेग्नेंट दे आर नॉट गोइंग टू डिलीवर. और हमारा जो पिछले जितने भी डिजास्टर्स आए हैं उनमें जो हमारी स्टडीज हैं वो ये शो करती हैं कि ये वो सेगमेंट है सोसाइटी का जो अनफॉर्चुनेटली इनिशियल प्लानिंग में कैटर नहीं किया जाता. इसी वजह से पाकिस्तान में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वर्किंग ग्रुप पहले फॉर्म किए, फिर उस लेवल पे हमने मिस की ट्रेनिंग शुरू की. मिस जो है दिस इज मिनिमम इनिशियल सर्विस पैकेज, और ये वो इंटरवेंशन हैं जो कि किसी भी डिजास्टर में विदाउट गोइंग इनटू एनी ग्राउंड एनालिसिस आप इमीडिएटली बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन जो कि ग्लोबल कैलकुलेशन है यू कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग. और हर सर्विस के अगेंस्ट दे हैव अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ किट. दिस इज द रीजन इट इज नोन एज मिनिमम इनिशियल सर्विस पैकेज बिकॉज इट कम सबसिड विद द कॉरेस्पॉन्डिंग किट्स. तो मिनिमम इनिशियल सर्विस पैकेज हम जो ये इसकी बहुत सी हमने ट्रेनिंग की. ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये चीज जो हाईलाइट हुई वो ये है कि बिकॉज दीज आर द कम्युनिटीज हु आर गोइंग टू सफर. तो अगर हम कम्युनिटीज की रेजिलियंस किसी तरीके से डेवलप कर सकें और बहुत छोटी इंटरवेंशन से लाइक जैसे मैंने कहा कि उनके आप ग्रुप बना दें, कोई ट्रांसपोर्ट ग्रुप बन गया, कोई ब्लड डोनर ग्रुप बन गया, उनकी कम्युनिटी रिस्पॉन्स टीम बना दें, वो अपने लेवल पे वो खुद ही दे कैन मैनेज. और जो अभी तो WHO का अगर आप बहुत से लोग आप में से जानते होंगे कि सेल्फ केयर को जो कंसेप्ट है वो इसी वजह से है कि जो छोटी मोटी एलिमेंट्स हैं वो कम्युनिटी अपने लेवल पर उनको एड्रेस कर रहे हैं. सो मीटिंग सेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स इन द इमरजेंसी, it prevents diseases, it prevents disability, and this is how it saves lives. मैं जो आपसे बात कर रहा था ना ये फ्लड्स की, तो जो अभी हमने डाटा एनालिसिस किया और जो एक स्टडी की गई in recent flood that is 2022, among those millions severely affected were the at least 6,50,000 pregnant women and girls. और इनमें
73,000 वो थी those who were near their due dates. तो ये कितना बड़ा सेगमेंट है अगर हम इनको इग्नोर कर दें, और इनमें से बहुत सी वो होंगी कि अगर उनको प्रॉपर केयर ना दी जाए, they may have to lose their life. तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद पंजाब, बिकॉज पंजाब इज ऑलमोस्ट 50% एज पर एज पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न. तो हमने यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग रेजिलियंस एंड reproductive health, or we wanted to integrate this with already intervention which is being implemented in Punjab by the health department and by population welfare department. तो हमारा जो expected outcomes थे उनमें सबसे पहला जो था that is resilience reference group की formation, and alhamdulillah in the last 1 month we managed to form this group. Then development of a comprehensive costed implementation plan. This is going to give us a roadmap how we are going to move forward, and advocacy and awareness raising. UNFPA से पहले एक resilience पे काम कर चुका है और उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 6 एक्शन पिलर्स एंड 3 इनेबलिंग पिलर्स. जो 6 आइडेंटिफाई किए थे उनमें जिन पर फोकस करने की जरूरत थी, दैट इज पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट, सर्विस डिलीवरी, कोऑर्डिनेशन एंड पार्टनरशिप, डिमांड क्रिएशन, कैपेसिटी बिल्डिंग. हम कुछ रीइन्वेंट नहीं करना चाहते थे. ये जो एक्शन थे, ये जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी WHO के वो जो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उन्हीं को फोकस करना और उन्हीं को हम स्ट्रेंथन करना चाहते थे. और इनके साथ जो 3 हमारे एनेबलिंग फैक्टर्स थे वो था डेटा एंड एविडेंस, बिकॉज यू कैन नॉट प्लान विदाउट द वैलिडेटेड डेटा. देन फाइनेंसिंग एंड ऑफ कोर्स यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. तो हमने with the safety children we started with the consultative workshop and meeting comprising all the stakeholders. From 29 November to 1 December हमने लाहौर में ये मीटिंग की जिसमें गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अदारे और कुछ तमाम के तमाम इसमें शामिल है. और मेरी इल्म में बहुत सारा इजाफा हुआ. इवन पुलिस में हमारा जो जेंडर सेल है वो बहुत अच्छा डेटा मेंटेन कर रहा है. जितनी FIR पूरे पंजाब में है उनके पास तमाम का डेटा अवेलेबल. इसी तरह अभी जो बात हो रही थी मिनिस्टर साहब जो कह रहे थे लिटरेसी का, हमारा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है उसके तकरीबन 22,000 स्कूल्स हैं कम्युनिटी में वेयर दे आर पार्टिंग दी एजुकेशन टू दोज हु आर आउट ऑफ स्कूल. तो हमारे बहुत से सेगमेंट काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ इंटीग्रेट करने की जरूरत है ताकि हम इकट्ठे होकर एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि कम्युनिटी के काम आए. Then the United Nations agencies, they are all on board. INGOs like IRC, Muslim Hand, Green Star, Mali School Society and other organizations. इसमें जो की एजेंडा था हमारा वो था एजेंसीज एंड प्रायोरिटाइज रेजिलियंस एंड SRHR एक्टिविटीज, रिव्यू कम्युनिकेशन की मैसेजेस को मैच करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मैसेज है शुड बी अंडरस्टूड बाय द कम्युनिटी. हम यहाँ पे बैठे लाहौर के लिए जो प्लान कर रहे हैं ये इज नॉट वैलिड इन द पर्पस. तो ये उनकी लैंग्वेज